Good morning children. Welcome to the new session 2021. I am your moral science teacher. My name is Sarbuj Lohani. Let's begin. First chapter is The Broken Pot. Once a water bearer in India had two large pots. He hung each pot at the ends of a pole which he carried across his neck. One of the pots had a crack in it. The other pot was perfect and carried the full portion of water up to the end of the long walk from the stream to the water bearer's house. The cracked pot arrived only half full. For a full 2 years this went on daily. The water bearer managed to carry only 1.5 pots full of water to his house. Of course, the perfect pot was proud. I am the best, it would often say, smirking at the cracked pot. Poor cracked pot grew more and more ashamed of its own imperfection. It felt miserable for being able to accomplish only half of what it had been made to do. After 2 years of what the cracked pot considered to be a bitter failure, it spoke dejectedly to the water bearer one day. "Sir, I am ashamed of myself and I want to apologize to you." "Why?" asked the bearer. "What are you ashamed of?" "For the past 2 years I have been able to deliver only half of my load because this crack in my side causes water to leak out all the way back to our house. Due to my flaw, you have to do all of this work and still don't get full value from your effort," the pot said. The water bearer felt sorry for the old cracked pot and said, "Today, as we return to the house, I want you to notice the beautiful flowers along the path." Indeed, as they went up the hill, the old cracked pot took notice of the sun, warming the beautiful wild flowers on the side of the path. This cheered it somewhat, but at the end of the trail, it still felt bad because it had leaked out half its load, and so again it apologized to the bearer for its failure. The bearer said to the pot, "Did you notice that there were flowers only on your side of the path, but not on the side of other pot?" The pot nodded that it had seen so. "That's because I have always known about your flaw and I took advantage of it. I planted flower seeds on your side of the path, and every day while we returned from the stream, you watered them unknowingly. For 2 years I have been able to pick those beautiful flowers to decorate my little daughter's room. Without you being just the way you are, I would not have this beauty to grace my house," said the water bearer. The cracked pot was no longer ashamed of itself. एक वाटर बियरर था, मतलब पानी ढोने वाला, जो पानी ले जाता है, वो इंडिया में एक वाटर बियरर था जो पानी ले जाता है। उसके पास 2 घड़े थे। वो एक घड़े में उसके छोटा सा छेद था, ठीक है, दूसरा घड़ा एकदम सही था। वह उन दोनों घड़ों को एक पोल, मतलब एक डंडे में बांध देता था किनारे किनारे, और अपने गर्दन में रख के वो दोनों पॉट्स का पानी अपने घर ले जाता था झरने से भर के, ठीक है। मतलब वो पानी भरने जाता था झरने में, वहाँ से दोनों घड़ों में पानी भरता था और अपने घर ले जाता था। पर उसके एक पॉट में छेद था, ठीक है। तो इससे जो पॉट जिसमें छेद नहीं था वो उस क्रैक्ड पॉट पे हंसता था कि देखो, मैं तो पूरा काम करता हूँ अपने मालिक का, लेकिन तुम पूरा काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि छेद की वजह से आधा पानी नीचे लीक हो जाता था, गिर जाता था, और आधा ही पानी अपने घर को पहुँचा पाता था वाटर बियरर। ओके, तो ऐसा ही 2 साल तक चलता रहा। वाटर बियरर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया कि मेरी वजह से मेरे मालिक को पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। मतलब बेचारे 2 पॉट भरते हैं लेकिन 1.5 पॉट ही अपने घर ले जा पाते हैं। तो वो बोला कि मैं अपने मालिक से बोला, पॉट अपने मालिक से बोला जो क्रैक था, कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं अपना पूरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे में एक छोटा सा छेद है। इस वजह से मैं आपको पूरा, आपका जो जितना आप काम करते हो उसका पूरी वैल्यू आपको नहीं मिल पा रही है। तो वाटर बियरर बोला कि तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो, मैं तुम्हें कल कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही वो पानी भरने के लिए ऊपर जा रहे थे, उन्होंने देखा, वाटर जो क्रैक्ड पॉट था उसने देखा कि सन जो है वो छोटे छोटे फ्लावर्स को अपनी गर्मी दे रहा है, और कितने सुंदर लग रहे हैं वो फ्लावर्स।
किस तरफ थे वो फ्लावर्स? जिस तरफ क्रैक्ड पॉट रहता था उस तरफ छोटे छोटे फ्लावर्स उग आए थे, ठीक है। तो उसके मालिक ने कहा कि क्योंकि तुम्हारा पानी गिरता था इसीलिए मैंने इस रास्ते में पूरे में फ्लावर्स के बीज बो दिए थे, और इससे क्या है, छोटे छोटे पेड़ निकल आए जिनसे फ्लावर निकलने लगे। मैंने तुम्हारी अहमियत को, मैंने तुम्हारे जो तुम्हारे जो क्रैक था, मैंने इसकी वैल्यू को समझा, तो मैंने कहा कि आप जो पानी गिर जाता है मतलब मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या किया था, उसने बीज बो दिए थे और उसके पॉट से जो पानी गिरता था क्रैक पॉट से, उससे वो बीज बड़े होके पेड़ बने, पेड़ से उसमें छोटे छोटे फूल खिलने लगे। तो वो जिस तरफ वो क्रैक पॉट रहता था उस तरफ पूरा फ्लावर्स के पेड़ हो गए थे और सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। तो वाटर पीरियड बोला कि देखो तुम अशेम मत हो, और इन फ्लावर्स, क्योंकि इन फ्लावर्स को मैं अपने घर तोड़ के ले जाता हूँ और अपनी बेटी का रूम सजाता हूँ, ये मुझे तुम्हारी इसी कृपा से मिला है, क्योंकि तुम्हारे में जो क्रैक था तुम्हारी ही कृपा से मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं फ्लावर्स को अपने घर ले जाके अपनी बेटी का रूम सजाता हूँ। तो ऐसा सुनने के बाद फिर क्रैक पॉट फिर शर्मिंदा नहीं हुआ। ओके ना चिल्ड्रन, ये कहानी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, ठीक है। नाउ दिस मच फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल discuss, read and understand, and I will give you the exercises to do. Okay, till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.